Assalamualaikum students. This is International Islamic University Islamabad Schools, Sahiwal campus. This is the lecture of Mathematics grade 6, unit number 3, ratio, and this is the first lecture of this unit. First of all, students, open your books and notebooks and listen to my lesson attentively. So first of all, I will explain you about comparing two quantities. When you are comparing two quantities, it gives you the ratio. So this is the example. Compare the number of circles with the number of rectangles. So these are the circles. So it means there are 6 circles and you have 2 rectangles. Now next is when you are dividing 6 divided by 2. Now you are finding how much the number of circles, like you are comparing the number of circles with the number of rectangles. So there are 6 circles and 2 rectangles. So you are dividing 6 divided by 2 equal 3. It means there are 3 times as many circles as rectangles. आपके पास 3 टाइम्स जो सर्कल हैं वो ज्यादा हैं रेक्टेंगल से. Number of circle is 3 times the number of rectangles. Now the next thing is you are comparing the number of rectangles with the number of circles. Which thing you are comparing? You have to divide by that. So 2 divided by 6 equal 2 over 6 equal 1 over 3. It means the 1/3 part is the number of rectangles. The number of rectangle is 1 over 3 of the number of circles. जब आप सर्कल्स के जो है वो 3 पार्ट करेंगे, जो उसमें से एक पार्ट होगा वो आपके पास क्या होगा? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है. देयर आर 15 रेड बॉल्स एंड 60 ब्लू बॉल्स इन अ बैग. द ए पार्ट इज हाउ मेनी टाइम्स एज मेनी ब्लू बॉल्स एज रेड बॉल्स आर देयर. You have to find out times. It means you have to divide 60 divided by 15. It gives you the answer 4. So it means the blue balls are 4 times as many as red balls. Now in the next part is what fraction of the number of blue balls is the number of red balls. Now you are finding the fraction. So it means 15 divided by 60, it gives you answer 15 over 60. 1 over 4. So it means the number of red balls is 1 over 4 of the blue balls. Now the next thing is the mass of apple is 200 grams. The mass of the mango is 700 grams. Express the mass of apple as a fraction of the mass of mango. 200 divided by 700 gives you the 2 over 7. So the number of apple is 2 over 7 of the number of mangoes. अब आपके पास mass जो है वो 200 है और जो mass of mango है वो आपके पास क्या है? 700. आपने mass of apple को as a fraction में show करना है mass of mango के. तो आपको पता है जो mass of apple है वो 2 over 7, मतलब कि 7 पार्ट में से जो 2 पार्ट्स होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज है वो 7 पार्ट होंगे और उन 7 पार्ट्स में से जो 2 पार्ट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे? नंबर ऑफ एप्पल्स होंगे. नेक्स्ट इज रेशियो एंड फ्रैक्शंस. देयर आर 6 balls and 3 toy cars. The ratio of the number of balls to the number of toy cars is. अब रेशियो को आप इस तरह से लिखते हैं 3:6. These 2 dotted are ratio. So अब आपने 6:3 है. अब मैंने क्या किया? 6:3 को मैंने सिंप्लीफाई किया. रेशियो को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 6 over 3. जब मैंने 6 over 3 को सिंप्लीफाई किया मेरे पास क्या आएगा? 2 over 1. तो 2 over 1 को जब मैं रेशियो में लिखूंगी तो क्या बन जाएगा? 2:1. 6 divided by 3 equal 3 over 2 equal 2. The number of balls is 2 times as many as the number of toy cars. अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे क्या है? 6 divided by 3. जब आप 6 divided by 3 करेंगे आपके पास 2 आएगा. तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो आपके पास 2 टाइम्स ज्यादा है नंबर ऑफ टॉय कार्स के.
अगर आप इस रेशो को भी देख के देखें तो आपको ये एक्सप्लेन हो रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो 2 टाइम्स ज्यादा है नंबर ऑफ कार्ड्स के. जब 1 आ गया इट्स मीन 1 पार्ट एंड 2 टाइम्स मीन 2 पार्ट्स. Both of them are right. This one and this both are the right. 2:1 and 2/1 express the same relationship between the two numbers. अगर आप 2:1 और 2/1 लिखते हैं तो ये दोनों जो हैं वो रिलेशन सेम जो है वो सेम रिलेशन शो करते हैं. 2:1 को आप 2/1 भी लिख सकते हैं और 2/1 को आप 2:1 भी लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स ब्रेथ. व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. अब सबसे पहले आपके पास क्या है 2:1. ये उसकी रेशियो बन गई है कि 2 पार्ट्स आपके पास क्या होंगे लेंथ के, तो आपके पास एक ब्रेथ का आएगा. So 2:1 and 2/1 express the same relation. The ratio of the length to the breadth of the rectangle is 2:1. Now the next question is the ratio of the number of oranges to the number of apples to the number of pears is 3:4:8. Now you have three ratios: number of oranges, number of apples, and number of pears. The first ratio is for the number of oranges, that is 3, and the second ratio is for the number of apples, that is 4, and third one is the number of pears, that is 8. So write the number of the oranges as the fraction of the number of apples. अब आपने number of oranges की fraction में लिखना है number of apples में. अब आपके पास number of oranges क्या है 3. आप ये क्या बन जाएगी 3:4, और 3:4 को आप 3/4 में भी लिख सकते हैं. B है how many times as many pears as apple are there. अब apples देखिए आपके पास 4 है, 4:8. 4:8 जब आपने क्या किया 8:4 को डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2. इट्स मीन देयर आर 2 टाइम्स एज मैनी pears एज एप्पल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 2. Grace scored 80 marks in maths test. Saima scored 95 marks in the same test. Express the ratio of Grace scored to Saima scored in the simplest form. अब आपने उनकी रेशियो को जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. जिसकी आपके पास जो नंबर नेम पहले होगा आप उनके मार्क्स पहले लिखेंगे. ग्रेस स्कोर तो 80 आप पहले लिखेंगे एंड देन आप रेशियो 95 लिखेंगे. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 5 पे डिवाइड किया. 5 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 16 आ गया और यहाँ पे 19 आ गया, और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है. मैं इसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकती. 19 मेरे पास प्राइम नंबर है तो ये आगे डिवाइड नहीं हो सकती. So the simplest form is 16:9, 19. Now the B part is Saima scored as a fraction of a Grace scored in the simplest form. 95/80. When you simplify it, you have to divide by 5. So it gives you the ratio that is 19/16. फ्रैक्शन में आपने लिखना है तो आपने ओवर की फॉर्म में लिखना है. जब आपने रेशियो में लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे. नाउ स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 3. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फॉरेन स्टैम्प्स टू द नंबर ऑफ लोकल स्टैम्प्स in a Mary's collection is 5:3. Mary has 64 more foreign stamps than local stamps. अब क्वेश्चन ये है कि जो आपके पास रेशियो है फॉरेन स्टैम्प और आपके पास जो आपके पास फॉरेन स्टैम्प से नंबर ऑफ लोकल स्टैम्प वो रेशियो आपके पास क्या है 5:3, और मैरी के पास 64 मोर फॉरेन स्टैम्प है लोकल स्टैम्प के निस्बत. अब आपने ए पार्ट क्या है हाउ मेनी फॉरेन स्टैम्प्स डज मैरी हैव. मैरी के पास फॉरेन स्टैम्प्स कितनी है आपने वो फाइंड करनी है. फॉरेन स्टैम्प्स 5 पार्ट्स में डिवाइड है आपके पास, और ये जो 2 पार्ट्स जो हैं वो आपके पास क्या होंगे 64 के इक्वल है. लोकल स्टैम्प्स आपके पास किसके इक्वल डिवाइड है 3 पार्ट्स में है.
अब वो कह रहे हैं कि मैरी के पास 64 मोर स्टैम्प है, इट्स मीन 3 तो दोनों में है, जो 2 पार्ट्स जो है वो फॉरन में ज्यादा है, सो इट्स मीन ये 64 के इक्वल होंगे। 2 पार्ट्स इक्वल 64, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 पार्ट क्या फाइंड करेंगे, 1 यूनिट इक्वल 64 डिवाइडेड बाय 2, इट गिव्स यू द 32, इट्स मीन ईच पार्ट इक्वल 32। Now open page number 40, question number 3, and this is the remaining part of the previous question. 5 units, 5 multiply 32 equal 160. Mary has 160 foreign stamps. क्यों? क्योंकि आपको 5 पार्ट्स फाइंड करने हैं, तो जब 32 ईच पार्ट के इक्वल है और 32 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा। अब 3 यूनिट्स जो है वो 3 मल्टीप्लाई 32 96, इट्स मीन मैरी हैज 96 local stamps. Now student, page number 44, question number 2. To make fruit juice, John's mother mixed some fruit syrup, water in the ratio of 2:3. She made 1800 milliliter of fruit juice. अब उन्होंने फ्रूट जूस बनाने के लिए जो जॉन मदर है उन्होंने वाटर सिरप और एप्पल सिरप और वाटर को जो है वो इस रेशो में मिक्स किया है कि 2:3, और उन्होंने 1800 टोटल जूस जो है वो बनाया। हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ एप्पल सिरप डिड शी यूज? अब जो टोटल है दोनों का वो 1800 है और रेशो क्या है, 2:3। आपने दोनों को जब रेशोज को ऐड करेंगे आपके पास 5 आएगा। आप इस 5 को क्या करेंगे, 5 यूनिट आपके पास किसके इक्वल है, 1800। आप क्या करेंगे, 1 यूनिट फाइंड करेंगे, तो 1 यूनिट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 1800 डिवाइडेड बाय 5, इट गिव्स यू द आंसर दैट इज 360। अब आप 2 यूनिट फाइंड करेंगे, वो आपके पास 360 मल्टीप्लाई 2 720, इट्स मीन जो एप्पल सिरप है उन्होंने कितना यूज किए, शी यूज 720 मिलीलीटर एप्पल सिरप। Now the B part is how many milliliters of water she used. वो कितना वाटर जो है वो यूज करेंगे। अब वाटर की यूनिट 3 है तो आप 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ, तो वो आपके पास आ जाएगा 1080 मिलीलीटर। सो शी यूज 1080 milliliter of water. Now question number 4, question number 5, page number 44. A string with a length of 156 centimeter is cut into 3 parts in the ratio of 3:6:4. What is the length of each of the 3 parts? आपने लेंथ फाइंड करनी है, आपको उन्होंने रेशियो दे दिया कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, आपने उनकी लेंथ फाइंड करनी है हर पार्ट की। आप क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शंस को ऐड कर लेंगे, 13 आया। अब जो ये 13 यूनिट है वो किसके इक्वल है, 156 सेंटीमीटर के। आप 1 यूनिट फाइंड करेंगे, वो कैसे, आप 156 को 13 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास 12 आ गया। अब आप सेपरेटली 3 यूनिट कैसे करेंगे, 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, सो फर्स्ट पार्ट हैज 36 सेंटीमीटर लेंथ। अब सेकंड को क्या करेंगे, 6 यूनिट 12 मल्टीप्लाई 6, सो 72, सो सेकंड पार्ट हैज 72 सेंटीमीटर लेंथ। थर्ड आपके पास 4 यूनिट है, 12 मल्टीप्लाई 4 आपको 48 सेंटीमीटर, सो इट्स मीन द थर्ड पार्ट हैज लेंथ 48 सेंटीमीटर। Now students, you have a homework. Do all the questions of page number 31 on your notebooks. Do all the examples from page number 34 till 36 on your notebooks. And the next task is do all the questions of page number 38, 44 on your books. And students, you have to do all your homework attentively. It's your practice. Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.